कर्नाटक के शिमोगा में एक बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर के अब राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं अलग अलग जगहों पर अब प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। वहीं सियासत भी तेज हो गई है। पूरे शिमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही साथ अगले कुछ दिनों के लिए स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। 26 साल के हर्षा की कल रात चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 से 5 युवकों के समूह ने उसकी चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी। वो दक्षिणपंथी कार्यकर्ता था, बजरंग दल का कार्यकर्ता था और सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट किया करता था। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये आरोप लगा रहे हैं कि इस्लामिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने उसकी हत्या की है और इस मामले को लेकर के कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कर्नाटक के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सड़कों पर उतरे हैं कार्यकर्ता। हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। हर्षा नाम के 26 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। 4 से 5 युवकों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की है। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में सुराग मिले हैं कि साजिश किसकी है, किसने इस हत्या को अंजाम दिया है। बड़ी चुनौती यह है कि हर्षा का अंतिम संस्कार बिना किसी विवाद के हो पाए। प्रशासन चौकस है। Yesterday night there was a stabbing incident has been done, and there was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. Siddaramaiah sees politics, he talks only illogical things. Murdered yesterday, 4 or 5 persons collude in this, and already our Home Minister has given the statement they are going to arrest culprits, and I will condemn this incident, and such things should not have happened anywhere in the state, so we will take appropriate action as early as possible. So do you think this is because of hijab issue also, do you feel? No, I don't think so. Yesterday we have seen a death of a boy, a poor man boy, poor family. This is their achievement. Both Congress and BJP, I think, instead of showing pity on them, they can enjoy now. They achieved to destabilize the peace of this state, according to me. Both Congress and BJP, they want this kind of incidents. इस मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हर्षा की हत्या किस संगठन ने की है, किन लोगों ने की है। वहीं डीके शिवकुमार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका यह कहना है कि भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी की सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. The Congress party condemns the murder. The law should take its own course. I don't see any political angle in this. Already the Home Minister has given a statement about the whereabouts, the background and everything. We want a clear investigation to be done on this. Whoever the culprit is, action has to be taken. So even the justice has to be given to the family. You know, Ishwarappa is a very mad man. Mr. Siddaramaiah said that he doesn't have connection between his tongue and his brain.
all nonsense he speaks. First sedition case has to be booked against him. And the शिवमोगा अचानक सुर्खियों में क्यों है, यहां पर इतना तनाव क्यों पसरा हुआ है, आइए हम आपको बताते हैं। यहां पर हिजाब विवाद को लेकर भी काफी दिनों से प्रदर्शन हो रहा था। इस बीच कर्नाटक के शिवमोगा में युवक की हत्या कर दी जाती है। रविवार रात को हर्षा नाम के युवक का मर्डर होता है, जो कि हिंदू हर्षा के नाम से अपने आप को पेश किया करता था। हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में पत्थरबाजी भी की है। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। हालात को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने मृतक के परिवार से मुलाकात भी की है, उन्हें सांत्वना दी है। हत्या के बाद स्कूल कॉलेजों को फिलहाल बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो। जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दरअसल कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा था, और जो हर्षा जिसकी हत्या हुई है वो भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था और इस तरह के पोस्ट डाला करता था। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुस्लिम स्कॉलर अली कादरी हमारे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, और इस जयपाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपाल, जानना चाहेंगे अभी प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई है और फिलहाल क्या स्थिति है अभी शिवमोगा में? जी देखिए, कल रात से ही शिवमोगा के अंदर में स्थिति काफी तनावपूर्ण है, और यही वजह है कि वहां पर पूरे शहर के अंदर में 144 धारा लगाई गई है और स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस वक्त शहर में सब कुछ साधारण रूप से चल रहा है, पुलिस की बहुत कड़ी गश्त है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खामोशी है, कह सकते हैं एक अजीब सी आशंका जरूर है लोगों के बीच में। और यही वजह है कि पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस वक्त जिन लोगों ने हत्या की है उसकी तह तक पहुंचे, उनको पकड़े। और यह वहां की स्थिति है। फिलहाल जो है हर्षा का जो पोस्टमार्टम हो चुका है और उसके शव को कड़ी पुलिस की निगरानी के बीच उसके घर ले जाया गया है, तो अंतिम संस्कार उसका आज किया जाएगा। और यह सब कुछ पुलिस के पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा। जी साथ ही ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन के पास किस तरह के सुराग लगे हैं हत्या को लेकर के, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी चश्मदीद से कोई जानकारी मिली है? क्या सुराग हैं प्रशासन के पास, या फिर अभी खाली हाथ है? जी देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की है और उन्होंने बताया है कि उनके पास, पुलिस के पास कुछ ऐसे वाइटल क्लू मिले हैं जिससे कि वो इस हत्या के कारण और किन लोगों ने की है उस तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस अभी उसके ऊपर में काम कर रही है। पुलिस अपनी तरफ से अभी किसी चीज का खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा खुलासा करना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर एविडेंस वो सामने में ले आएगी तो जो हत्यारे हैं वो सतर्क हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह के मुख्यमंत्री का दावा है कि उनको क्लू मिले हैं, तो जरूर उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही पुलिस उन लोगों तक पहुंच जाएगी। जी, हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। विजय शंकर जी, जब पुलिस इस पर काम कर रही है, टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों उतरे हैं? देखो, ऐसा है कि अपनी बात रखना ये लोकतंत्र का अधिकार है हमारा, और ये हर्षा जो है हमारा प्रखंड का, और प्रखंड का जो हमारा संयोजक हर्षा है उसको पिछले 2 साल से धमकियां मिल रही थी। जी, ये एसडीपीआई और पीएफआई के जो गुंडे हैं, इनके आतंकी हैं, और कर्नाटक में इनका बड़ा प्रसार है, तो उन लोगों के द्वारा हमारे इस कार्यकर्ता की हत्या हुई है। जी, और हम एक बहुत बड़ी विडंबना इस देश की है कि जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बार बार बात करते हैं, तो अपनी बात रखना ये कोई अलोकतांत्रिक है क्या? वो अपनी बात रखता था, सामाजिक विषयों पर रखता था, और इस प्रकार के विषय रखना कोई अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के बाहर की बात नहीं है। इसके बाद भी उसकी नहीं, तो जो लोग ये कहते हैं कि हम डरे हुए हैं, तो क्या इसी प्रकार का डरना कहलाता है क्या? ये डरे हुए लोग हैं क्या? ये आतंकी लोग हैं, जलील लोग हैं, ये जल्लाद लोग हैं, और इनको फांसी तक पहुंचाने का काम कर्नाटक सरकार करे। और केंद्र सरकार से मैं ये करता हूं कि एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठन पर, जैसे सिमी को बंद किया गया था, उसी पर एसडीपीआई और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाए। अली कादरी साहब, वाली इस प्रकार
रखनी चाहिए। ठीक है, अली कादरी साहब, एक युवक की हत्या कर दी जाती है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डाला करता था, इसको लेकर के ये आरोप लगाए जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से कि इस्लामिक कट्टरवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने उसकी हत्या की है। देखिए साहब, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं है और कर्नाटक पुलिस की तरफ से कोई भी जवाब दिया नहीं गया है जी। ना तो किसी पर अभी शक जाहिर किया गया है। तो ये विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, इनका काम यही है कि हमारे अपने मुल्क की शांति को भंग करना और किसी तरीके से सांप्रदायिकता फैलाते हुए दो समुदाय में लड़ाना जी। किसी भी हम हत्या की तो तायद कभी नहीं करेंगे। ये जो हत्या हुई है बिल्कुल गलत है जी। और जहां तक के पीएफआई एसडीपीआई का सवाल है साहब, मैं कई बार आप लोगों के नेशनल मीडिया और अपने भाषण के जरिए ये बात बोल चुका हूं कि एसडीपीआई हो या पीएफआई हो, ये दोनों से भी मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी एक्टिविटीज से मुसलमान सहमत नहीं है। हम अमित शाह जी से इस बात का मुतालबा करे हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पीएफआई और एसडीपीआई, इन तमाम के ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे मुल्क की शांति को भंग कर रहे हैं। इन्हों भी उतने ही है, वो भी इतने ही है। ये दोनों लोग जो है सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं और जो युवक की हत्या हुई है उसको हम कंडेम करते हैं और उनके घर वालों से हम अपनी पूरी सहानुभूति बताते हैं। जो कोई हत्या हुई है गलत हुई है, वो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत पोस्ट डाला करता था, उसकी अपनी जो है वो आजादी थी, वो कर सकता है। ठीक है, अली कादरी साहब, एक वाकये पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अहमदाबाद में जो है जो धमाके हुए थे, उसके कातिलों को, उसके जो दोषी थे उनको सजा का ऐलान किया गया, फांसी की सजा का ऐलान किया गया और जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से ये जो है कहा जाता है, जमाते इस्लामी की तरफ से कहा जाता है कि ये फैसला गलत है, उनको कानूनी मदद दी जाएगी, आगे केस को आगे ले जाएंगे। तो ये तो ट्रेंड गलत है ना कि अदालत की तरफ से जो लोग जिनको दोषी करार दिया गया है उनको भी बेगुनाह माना जाता है कुछ धर्मगुरुओं की तरफ से। ना साहब सुनिए, ये तो हमारी अपना तरीका रहा ना कि लोअर कोर्ट में अगर सजा होती है तो हम हायर कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में अगर सजा होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये हक आपको मेरे को अपने संविधान ने दिया है। लेकिन अस्पतालों में जिन लोगों ने धमाका किया, जो लोग करते हैं वो सिर्फ अगर किसी खास धर्म से जुड़े हुए हैं तो उस धर्म से जुड़े हुए संगठन जो है उसका समर्थन करें, ये तो बहुत गलत ट्रेंड है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कत्ल जो किया गया है उसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन फिर ये दूसरा पहलू भी आता है, तब जाकर के सवाल खड़े होते हैं और तब जाकर के जो है दूसरे संगठनों को मौका मिलता है सवाल उठाने के लिए। नहीं साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि लोअर कोर्ट में सजा हो तो ये तो हक है ना कि हाई कोर्ट को जा सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर कामयाबी ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। और जरा ही बात तो जब मुस्लिम युवक है तो मुस्लिम संगठन तो जाएंगे। इस तरीके से अगर कोई हिंदू युवक का केस होता है तो जो है हिंदू महासभा, उसके परिवार वाले जाएं, उसके परिवार वाले जाएं, समझ में आता है। लेकिन एक संगठन अगर जाता है तो यही समझ में आता है कि धर्म के नाम पर गोलबंदी की जा रही है और फिर ऐसे में आपकी जो अच्छी बातें आपने कही हैं थोड़ी देर पहले, उसके कोई मायने नहीं रह जाते। किशन भरवाड़ जिसकी हत्या हुई थी गुजरात में, उसमें जो है एक मौलाना भी जो है शामिल पाया गया था जिसने कि ब्रेन वॉश किया लोगों का, और वहां भी सोशल मीडिया ही मामला था। देखिए साहब, आर्थिक स्थिति अगर किसी की ठीक ना हो तो उसको तो कोई मुस्लिम संगठन जो है मदद करेगा ना साहब जी। तो वो तहत के वो हिसाब से जाते हैं और अगर कोर्ट अगर फाइनली अपनी वर्डिक्ट देता है तो फिर हम कोर्ट के फैसले को तो जरूर मानेंगे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन इससे भरोसा नहीं हो पाता है। इसमें डबल स्पीक हो रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका अली कादरी साहब, विजय शंकर जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए, इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।